Students, once again you all are welcome in Mensuration Volume 3. In this session, we are going to have some knowledge about equilateral triangle. How to calculate the area of an equilateral triangle, how to calculate the height of an equilateral triangle, and various things about the equilateral triangle. Now, first of all, I just want to recap your memory. What is equilateral triangle? From the Latin word equilateral triangle, the name is derived. It means all laterals, means all sides of a triangle being equal. How many sides of a triangle have? एक triangle के पास कितने sides होते हैं? We all know 3 sides are there. In the triangle here AB, BC and CA, they represents the sides of a triangle. Now if the length of AB, BC and CA are equal, then we can say that the triangle is equilateral. It means the length AB equal to length BC, this equal to length CA, and all let equal to A unit. All the sides let have the length A unit. Here A represents any magnitude, 2, 3, 4, 5, 6, so on, any magnitude. So how to calculate the area of the equilateral triangle? Means what is the region, what is the magnitude of the region occupied by this triangle on the plane. This is the meaning of area of any triangle. हम यहाँ क्या कैलकुलेट करेंगे? ये कैलकुलेट करेंगे कि जो ट्रायंगल गिवन है वो प्लेन के ऊपर कितना रीजन को ऑक्युपाई किया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन? प्लेन है क्या? तो एनी फिगर विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ आर कॉल्ड प्लेन. यहां अभी हम किस चीज पे डायग्राम बना रहे हैं? व्हाइट बोर्ड पर. दिस व्हाइट बोर्ड इज अ प्लेन. तुम किस पे बना रहे हो अभी? अपने पीस ऑफ पेपर पे, कॉपी के पेपर पे. तो योर पेपर इज अ प्लेन, यानी योर पेपर हैज लेंथ एंड ब्रेथ, दैट्स व्हाई इट इज अ प्लेन. And the white board is also, this is your length and this is your breadth. That's why it is also a plane. Now how to calculate the area of the equilateral triangle? It's very simple. First of all, I will derive the formula for the equilateral triangle, and later on we will discuss some easier method how to calculate the area. एक परपेंडिकुलर हम वर्टेक्स ए से ड्रॉप करेंगे बीसी के ऊपर. द नेम विल बी एडी. वी हैव ड्रॉप द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ए टू द साइड बीसी ऑफ द गिवन ट्रायंगल. अगर इससे पहले वॉल्यूम 2 आप लोग देखे होंगे तो उसमें एक हमने कॉन्सेप्ट बतलाया था. क्या कॉन्सेप्ट था? आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जो 2 इक्वल साइड कंटेन किया हुआ वर्टेक्स है, अगर वहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो दैट परपेंडिकुलर विल बाइसेक्ट दैट साइड. सेम केस यहां भी है. दीज 2 साइड्स AB एंड AC आर इक्वल. द वर्टेक्स A कंटेन्ड बाय 2 इक्वल साइड्स AB एंड BC. अब यहां से अगर हम लोग परपेंडिकुलर AD को ड्रॉप करेंगे तो जो बेस BC है दैट विल बी बाइसेक्टेड. दिस पोर्शन विल बी A by 2 एंड दैट पोर्शन विल आल्सो विल बी A by 2. नाउ वी विल टेक दिस ट्रायंगल. एनी ट्रायंगल वी कैन टेक फ्रॉम AD दिस साइड. वी कैन टेक दिस ट्रायंगल और वी कैन टेक दैट ट्रायंगल आल्सो. या तो हम ABD लें या तो हम लोग ACD लें. दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों में से कोई एक हम लोग चूज कर लेते हैं अपनी इच्छा के अनुसार. मैथमेटिक्स बहुत हम लोग को स्कोप देता है मानने के लिए, समझने के लिए, चुनने के लिए. अपनी इच्छा से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये स्कोप हर जगह उपलब्ध नहीं है. वो समझना पड़ेगा. प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा. आपके हाथ में ना उंगली में आंख आ जाएगा, दिखाई देने लगेगा. बिना दिमाग का ही आप समझ बनाने लगेगा. तो हम लोग ये ट्रायंगल ले रहे हैं. दिस ट्रायंगल वी आर टेकिंग दिस ट्रायंगल. इन ट्रायंगल A, B and D, what we are observing? AB is hypotenuse. This is the longest side. AB square. This equal to AD square plus BD square. This is your triangle A, B and D.
this side is hypotenuse, this is your perpendicular and this is base. The square of hypotenuse is equal to base square plus perpendicular square. This is popular Pythagoras theorem. We are applying the same popular Pythagoras theorem here also. So what is the magnitude of AB? What is the magnitude of AB here? I have clearly written here. The magnitude of AB is A. We write A square equal to. What is the magnitude of AD? AD is the altitude. AD क्या है बोलो तो? Altitude, height of the triangle. Let it be H. I am denoting it by symbol H. This is your H square. And what is the magnitude of BD? BD is given to be A by 2. We write A by 2 whole square. It means A square minus A square by 4 equal to H square. अब तुम पूछेगा सर ये A square by 4 कहाँ से आ गया? तो हम लोग तो जानते हैं A का स्क्वायर A स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। और इसको इस साइड शिफ्ट कर दिए तो जो प्लस था वो क्या हो गया? माइनस हो गया। तुम लोग जानता है इक्वेशन ये ब्रिज का काम करता है, जो पार करेगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब बहुत सिंपल कैलकुलेशन है एलसीएम। The LCM is 4. We have 4a square minus a square. This equal to h square, or h square equal to 3a square by 4, or h equal to root over 3 by 4a square, or h equal to root 3 by 2 into a. यहाँ देखिए 3 से रूट नहीं जाएगा क्योंकि रूट 3 अकेले है। 4 को हम लोग स्क्वायर नंबर है 2 इंटू 2 लिखेंगे तो 1 2 बाहर आ जाएगा 4 का, और a स्क्वायर ऑलरेडी a इंटू ए स्क्वायर है, a बाहर आ गया, इतना यूनिट। इट मींस वी हैव अ फॉर्मूला नाउ। किसका फॉर्मूला? हाइट। किस चीज का हाइट? हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। व्हाट इज द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल? द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन बाय रूट 3 अपॉन 2a। What is the meaning of a here? यहाँ a क्या रिप्रेजेंट करता है? Length of the side of the equilateral triangle. A represents all the 3 sides because all the 3 sides of the triangle are equal. सभी 3 sides triangle का क्या होगा? बोलो equal होगा. Now we have to calculate the entire area of the triangle ABC. So triangle ABC, the area is equal to half base into height. This is the general formula for any triangle. Area of any triangle is given by half base into height. Why? हम लोग क्यों इस फॉर्मूले को पहले यूज नहीं किए? क्योंकि इस फॉर्मूले में हमको बेस तो मालूम था BC, लेकिन उसका करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड AD का मैग्नीट्यूड नहीं मालूम था। अब हमारे पास क्या एक्स्ट्रा जानकारी आ गया? AD H एल्टीट्यूड का मैग्नीट्यूड आ गया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एल्टीट्यूड? रूट 3 by 2a। माने एल्टीट्यूड का मैग्नीट्यूड नाउ इट इज नोन टू अस, वी कैन पुट इट दिस इक्वल टू हाफ इन प्लेस ऑफ बेस। दिस इज द बेस BC, you can write a, and in place of altitude we will write root 3 by 2a. It means area is equal to root 3 by 4a square. 2 to the 4. You all are understanding? And the unit of area is square unit. So what we are observed here, यहाँ हमने क्या सीखा? How to calculate the area of equilateral triangle if its sides is to be a. अगर किसी भी equilateral triangle का side a हो तो उसका एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन द क्वेश्चन वी कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी हमने 2 जानकारी यहां हासिल की। इस सेशन में हमने 2 जानकारी हासिल किया। पहला जानकारी क्या है? पहला नॉलेज हमारा क्या है? हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इट इज गिवन बाय रूट 3 by 2a यूनिट। और दूसरा जानकारी हमने क्या किया हासिल? एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल रूट 3 by 4a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, जहां पे a क्या है? व्हाट इज ए? लेंथ ऑफ द साइड।
length of the side. A represents length of the side of the equilateral triangle. अब हम लोग थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन ध्यान देंगे। पहले तो आपको पूरा एज इट इज संग संग हमारे लिखते रहना होगा कॉपी पे, तभी जा करके आप अच्छा कर पाएंगे। अब एक एग्जांपल हम कोट करते हैं। लेट अस सपोज द साइड of the equilateral triangle is given to be 20 centimeter. Calculate height and area. An equilateral triangle is given A, B and C, 20 centimeter each. The side is 20 centimeter each. It means A is given 20 centimeter. In the question we have given the sides of the equilateral triangle. Sides is represented by A, small a. It's symbolic representation of the sides of the equilateral triangle in mathematics. उसे A for apple भी होता है, लेकिन हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं इसलिए A for length of the equilateral side हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये भी बोल देगा कहीं, सर A for not apple, it is length of the sides of an equilateral triangle. Height. What is the height of the equilateral triangle? We will memorize the formula. Root 3 by 2a unit. Height is equal to root 3 by 2. In place of a we can put 20 and then the unit centimeter, not unit. What is the unit here? Centimeter. We will cancel it. 10. H equal to 10 root 3 centimeter. Height is being calculated. We have calculated the height of the equilateral triangle. Now what is the second question, second part? The second part is calculate the area. How to calculate area? We know the formula. Area equal to root 3 by 4 a square. What is a here? यहाँ a क्या है? A is the length of the side of the equilateral triangle. और यहाँ a का वैल्यू कितना given है? 20. We can write square unit here. Why? यहाँ square unit हमने क्यों लिखा? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, a का यूनिट नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में ए का यूनिट यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए हम स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे जब ए का वैल्यू पुट करेंगे। अगर क्वेश्चन में ए का वैल्यू मीटर दिया रहता तो हम लोग स्क्वायर मीटर लिखते, अगर किलोमीटर दिया रहता तो हम लोग स्क्वायर किलोमीटर लिखते। वी कैन राइट रूट 3 by 4 20 into 20 then unit square centimeter, 10 and then 2 10 100 root 3 square centimeter. Area is also calculated to be 100 root 3 square centimeter. In this way we can calculate the area and height of the equilateral triangle. अब आप एग्जाम में गए, थोड़ा सा सम्स को ट्विस्ट कर दिया। क्या सम्स को ट्विस्ट किया? बनाते हुए रहना है संग संग, क्योंकि यहाँ टाइम नहीं दिया सकता, आपको सुनना है, बनाना है, फिर रिबाउंड कर करके बार बार देखना है। क्या सम्स को ट्विस्ट किया? सम्स को थोड़ा ट्विस्ट किया और आपसे बोल दिया कि द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10 रूट 3. द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज not 10 root 3, let us suppose 20 root 3. The height of the equilateral triangle is 20 root 3. Calculate its area and perimeter. Perimeter जानते हैं किसको बोलते हैं? Perimeter is sum of all the sides. तो यहाँ कौन सा साइड्स है? पहला साइड्स का मैग्नीट्यूड कितना है? A यूनिट. दूसरा साइड का मैग्नीट्यूड कितना है? A यूनिट. थर्ड का भी मैग्नीट्यूड कितना है? A यूनिट. तो A plus A तीन बार अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा? 3A होगा. 3A यूनिट होगा. अब देखो सम्स में क्या गिवन है? हाइट इज गिवन. हाइट हाउ मच? 20 रूट 3 सेंटीमीटर. दिस इज योर ट्रायंगल A, B and C. This is your height AD, H, and this is given to be 20 root 3 सेंटीमीटर. तो अगर A गिवन होता तो वी कैन डायरेक्टली पुट, अगर साइड लेंथ ऑफ द साइड गिवन होता तो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. लेकिन यहाँ लेंथ ऑफ द साइड नहीं गिवन है, यहाँ हाइट गिवन है. तो उस हाइट से हमको लेंथ ऑफ द साइड को अलग पिक करके निकालना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा. लेट साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू A, देन हाइट इज हाउ मच? रूट 3 by 2A. हम मान लेते हैं कि जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का जिसका साइड हमको नहीं मालूम है
उस ट्रायंगल का साइड लेट अस सपोज ए है, तो चूंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन, हम आज जितना कुछ बतला रहे हैं वो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल है। पर्टिकुलर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑल ट्रायंगल्स की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ द साइड इज ए? अभी हम लोग फॉर्मूला ड्राइव किया, इफ द साइड इज ए देन द हाइट विल बी गिवन टू बी √3/2a। एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन इन द क्वेश्चन? 20 √3 centimeter, or we can write √3/2a equal to 20 √3. We can cancel √3 and √3. a/2 equal to 20, a equal to 40 centimeter. A is being calculated. What is a here? यहाँ पे a क्या है? A is the length of the side. अब हमको जो हाइट दिया हुआ था 20 √3 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वहां से हमने साइड को पिक कर लिया, साइड को अलग कर लिया। अब आपसे यहां से दो ही सम्स बनता है, एक बनता है पेरीमीटर दिस इक्वल टू 3a, 3 into 40 सेंटीमीटर, एंड दिस इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। और दूसरा सम्स बनता है कैलकुलेट इट्स एरिया। एरिया इज इक्वल टू √3/4a स्क्वायर, √3/4 40 into 40, यहाँ स्क्वायर भी लिख देंगे, यहाँ स्क्वायर सेंटीमीटर लिख देंगे, 400 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया इज बीइंग कैलकुलेटेड, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज बीइंग कैलकुलेटेड। इट मीन्स आइदर साइड विल बी गिवन, अगर साइड अगर आपको दिया है तो सम्स तो आसान हो गया, डायरेक्टली हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, साइड का वैल्यू रखेंगे, हाइट कैलकुलेटेड। एरिया में भी साइड का वैल्यू रखेंगे, एरिया कैलकुलेटेड। थोड़ा सा सम्स को ट्विस्ट करेगा तो हाइट गिवन होगा, और जब हाइट गिवन होगा तो हाइट से हाउ टू पिक द लेंथ ऑफ द साइड, दिस इज द आर्ट। यही तरीका है हाउ टू पिक द लेंथ ऑफ द साइड इफ द हाइट इज गिवन। अब अगर थोड़ा ज्यादा ट्विस्ट करें तो एक बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है, लास्ट तक वीडियो देखना है। अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो क्या ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है हम आपको बताते हैं अभी। अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इतना ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है कि आपको कोई इतना ब्यूटीफुल कोई नहीं दिखाई देगा ये दुनिया में, मतलब इतना सुंदर प्रॉपर्टी ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल ही दिखाता है और कोई ट्रायंगल नहीं दिखाता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ए, बी एंड सी, जिसका लेंथ ऑफ द साइड सब ए यूनिट है, अगर कोई भी एक पॉइंट पिक करें, एनी पॉइंट इनसाइड द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, इनसाइड द इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर कोई भी हम लोग पॉइंट कहीं भी लें, आइडेंटिफाई करें किसी एक पॉइंट को, हमने एनी पॉइंट लिया है, ये फिक्स पॉइंट नहीं है, आप इसको यहां भी ले सकते हैं, आप इसको यहां भी, एनीवेयर इनसाइड द इक्विलेटरल ट्रायंगल ले सकते हैं। और यहां से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करें पहले साइड्स पे, जिसका नाम हमने P1 लिख दिया, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप किए दूसरे साइड पे, जिसका नाम हमने P2 लिख दिया, और यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तीसरे साइड पे, जिसका नाम हमने P3 लिख दिया, यहां बात कर P3 लिख दिया। तो व्हाट इज P1, P2 एंड P3? P1 is the perpendicular from that point on one side, P2 is the perpendicular from the same point on another side, and P3 is the perpendicular length of the perpendicular on the remaining side from the same point. इसी पॉइंट से तीन परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया। अब हम लोग एल्टीट्यूड हाइट ड्रॉप करेंगे इसका, AD. What is AD? AD is H, height. So there is a very beautiful relation. Height is equal to P1 plus P2 plus P3. Whatever may be the position of the point, height means altitude of the triangle. AD. I am writing here. AD. This height. This height
of the equilateral triangle is equal to sum of the three perpendiculars from a point inside it. इस ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक पॉइंट को पिक कर लीजिए, उस पॉइंट से आप तीनों साइड्स पे एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं आप एक साइड्स पे। तो तीन परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करेंगे, तीनों का लेंथ का जो सम होगा दैट सम इक्वल टू हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर कोई स्टूडेंट बोले कि सर हम पॉइंट यहां लेंगे, ठीक है, ले लो, वहां से एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉप किया, इसका नाम P1 कर दिया, यहां से एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉप किया, इसका नाम P2 कर दिया, और यहां से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप किया, इसका नाम P3 कर दिया, एंड दिस इज द हाइट। फिर अगर स्केल से हम P1 में मेजर करेंगे, स्केल से P2 मेजर करेंगे, स्केल से P3 मेजर करेंगे, और स्केल से हाइट भी मेजर करेंगे, तो वी विल फाइंड ए ब्यूटीफुल रिलेशन height of the equilateral triangle equal to P1 plus P2 plus P3। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में अगर रखेंगे हम लोग, if we put this concept in mind, a very difficult problem of the on the equilateral triangle can be solved in a very easy method। बहुत कठिन सवाल equilateral triangle का we can solve in a very easy method। Now I am citing a question from your book। क्वेश्चन क्या बोलता है? The length of the perpendicular from any point inside an equilateral triangle। The length of the perpendicular from any point inside an equilateral triangle is 10 centimeter, 20 centimeter, and 30 centimeter। Calculate the altitude, that is height, and area of the equilateral triangle। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम लोग डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये पॉइंट ले लिए, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया 2 नंबर, ये 3 नंबर। दिस इज योर P1 10 सेंटीमीटर, दिस इज योर P2 20 सेंटीमीटर, एंड दिस इज योर P3 30 सेंटीमीटर। इट इज गिवन। कैसे सम्स गिवन रहेगा? In equilateral triangle, from a point inside it, the length of the perpendiculars on the three sides of the equilateral triangles are 10 centimeter, 20 centimeter, and 30 centimeter. Calculate the length of its height, the perimeter, and area of the triangle. This is the sum. So P1 equal to, we write here 10 centimeter. थोड़ा और clarify करने के लिए हम लिख रहे हैं P2 equal to 20 centimeter and P3 equal to 30 सेंटीमीटर। ये हाइट हो गया। लेट हाइट ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू डिनोटेड बाई h। मान लेते हैं हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज डिनोटेड बाई h। लेट साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू लेट साइड ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू a यूनिट। मान लेते हैं इस साइड्स ट्राइंगल का, ये यहां से यहां तक a यूनिट, यहां से यहां तक a यूनिट, एंड दिस इज आल्सो योर a यूनिट। ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। अब आप बताइए, जिस ट्राइंगल का साइड a यूनिट होगा उसका हाइट क्या होगा? द हाइट विल बी गिवन बाय √3/2a। The height of the triangle will be given by √3/2a। This is the formula of the height of the equilateral triangle। अब जो आपको हम ब्यूटीफुल एक रिलेशन बतलाया है, and what is that beautiful relation? The altitude of an equilateral triangle is equal to sum of the three perpendiculars from a point inside it। So height also equal to P1 plus P2 plus P3, or height equal to 10 plus 20 plus 30, or in place of height we can put √3/2a। This equal to 60, or a is equal to 60 into 2/√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेंटीमीटर। नीचे रूट नहीं छोड़ते हम लोग, जब भी कैलकुलेशन करते हैं नीचे रूट नहीं छोड़ते हैं। 120 √3, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
क्यों ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई किए? नीचे का रूट गैप करने के लिए। दिस इक्वल टू 120 √3 बाई 3 कैंसल, दिस इक्वल टू 40 √3. It means length of the side is equal to 40 √3 centimeter. We have calculated the length of the side. हमने लेंथ ऑफ द साइड्स को कैलकुलेट कर लिया। अब तुमसे क्या पूछ सकता है? पेरीमीटर पूछ सकता है। पेरीमीटर इक्वल टू 3 है, वी नो। पेरीमीटर इक्वल टू 3 इंटू 40 √3 सेंटीमीटर, यानी पेरीमीटर इक्वल टू 120 √3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इज ऑल्सो कैलकुलेटेड। अब आगे तुमसे सम्स क्या पूछ सकता है? फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। Now we have the formula for area. Area is equal to √3 by 4a square. Then area is equal to √3 by 4 into, हम लोग a का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हैं, मार्क किए होंगे। कितना a का वैल्यू देखिए यहाँ 40 √3, वहां a का स्क्वायर है, इसलिए हम लोग 40 √3 इंटू 40 √3 दो बार लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, और एक ये 10 से कैंसिल कर देंगे। देखिए ध्यान से कितना अच्छा इंटू है इसका। 10 इंटू 40 400, √3 इंटू √3 3, और एक √3 बच गया, √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन एरिया इक्वल टू 1200 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर. We have also calculated the area of this equilateral triangle. When the length of the perpendiculars are given from a point inside an equilateral triangle, we can also calculate its perimeter. Only if height is required. अगर एक नंबर में खाली आपसे हाइट पूछे तो खाली जोड़ देंगे, तीनों को 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, दैट इज द हाइट योर। पेरीमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। खूब ध्यान से इस वीडियो को बार बार आप देखिए और देख करके इक्विलेटरल ट्रायंगल पर जितना सम से उसको बनाने का कोशिश कीजिए। आई थिंक यू कैन मेक ऑल द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल। थैंक यू, वी विल मीट वेरी सून।